Hello students, hope you are good. I'm back with the fourth and the last part of the chapter 2, sexual reproduction in flowering plants. तो हम कर रहे हैं post fertilization events. तो development of endosperm from triploid polar endosperm nucleus we have done. So in this lecture we'll be doing development of embryo from diploid zygote, development of seed from ovule, development of fruit from ovary. Then there are certain important terms from examination point of view. 1 mark 2 mark का आता है इसमें से. एपोमिक्सिस देखेंगे, एम्फीमिक्सिस देखेंगे, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोगैमी, एपोस्पोरी, एपोगैमी, डिप्लोस्पोरी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और पॉलीएम्ब्रियोनी. तो now we'll start with the development of embryo. So after fertilization, the fertilized egg is called zygote or oospore. You know that. The zygote then undergoes various stages of development and gives rise to an embryo. So this predetermined mode of development of embryo from the zygote is called embryogenesis. zygote से लेकर embryo बनने की जो पूरी stages हैं, that comes under embryogenesis. तो after fertilization, the zygote rests for a period. थोड़ी देर के लिए zygote rest करता है और ये जो resting phase होता है ये vary करता है. It can be few hours, some days or can be several weeks for some trees and plants. तो एंजियोस्पर्म्स में जनरली zygote की जो पहली डिवीजन है वो ट्रांसवर्स होती है. तो इस 2 सेल्ड स्टेज से लेकर डिफ्रेंसिएशन ऑफ ऑर्गन्स तक embryo is called proembryo. Now, let's see embryogeny in dicotyledons. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, the zygote, look at A, zygote enlarges, zygote gets enlarged in size, it secretes its own cellular cell wall and divides by a transverse division, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 अनइक्वल सेल्स, जैसा कि आप बी में देख पा रहे हैं. ये जो बड़ा सेल है, द लार्ज बेसल सेल इज कॉल्ड सस्पेंसर सेल विच लाइज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक. द स्मॉलर टर्मिनल सेल इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल सेल विच इज पोजिशनड टुवर्ड्स द चलाजल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक. ये आप देख पा रहे हैं इसमें. द बेसल suspensor cell divides transversely and the terminal embryonal cell divides by longitudinal division to form a tetrad. Now, suspensor has 2 cells. The lowermost cell towards micropilar end enlarges in size to form a vesicular basal cell. The other cell divides by transverse divisions to form a long suspensor having a row of 7 to 8 cells. Each cell of the 2-celled proembryo divides longitudinally to form 4-celled quadrant stage. आप घबराना नहीं. आप जब इसको अपने नोटबुक पे उतारोगे, आप डायग्राम अपने पास रखना और फिर उसके बाद देखना, आपको एक एक स्टेज समझ में आएगी. इसके बाद भी मैं आपको ये समझाऊंगी अच्छे से. तो ईच सेल ऑफ दिस क्वाड्रेंट डिवाइड्स बाय अ ट्रांसवर्स डिविजन टू फॉर्म 8-celled ऑक्टेंट स्टेज. इस ऑक्टेंट के जो लोअर 4 सेल्स होते हैं ना, वो बनाते हैं स्टेम टिप और कॉटिलिडन्स, और ऊपर के 4 हिप्पोकोटाइल बनाते हैं. देन ईच ऑफ दीज 8 cells of the octant divides by periclinal divisions to form an outer protodermal cell and an inner cell. एक ही होती है, ठीक है. हर एक सेल में एक एक पेरिक्लिनल डिविजन होगी और आउटर प्रोटोडर्मल सेल हो जाएगा और अंदर का इनर सेल हो जाएगा. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, the 8-celled octant now becomes 16-celled. Out of these, 8 are outer protodermal cells and 8 are internal cells. Now, these 8 protodermal cells, they divide by anticlinal divisions to form the surface layer of the embryo or
epidermis. The inner 8 cells divide in different planes and form ground meristem and procambium of cotyledons, hypocotyle, and plumule. Then the suspensor cell, which is in contact with the globular proembryo, is called hypophysis. Now, this hypophysis divides by longitudinal and transverse divisions to form 3 tiers of cells. And all these cells derived from hypophysis gives rise to root apical meristem. So up to this stage, the developing embryo is globular. It has radial symmetry and it is called as proembryo. When the radicle is the future root apex, and plumule is the future shoot apex, and cotyledons then develop, only the proembryo is transformed into embryo. जब radical, plumule और cotyledons बन जाते हैं तभी proembryo जो है वो embryo में transform हो जाता है. So when cotyledons start differentiating in the globular proembryo, it gives rise to a heart-shaped embryo. The growth of the cotyledons also leads to a dome-shaped plumule, which is future shoot apex. तो सबसे पहले ज़ाइगोट इनलार्ज कर जाता है, ठीक है, वो अपनी सेल वॉल सिक्रीट कर लेता है और एक ट्रांसवर्स डिवीजन से 2 अनइक्वल सेल्स बनाता है. अब आप डायग्राम देखते जाओ. तो 2 अनइक्वल सेल्स बन गए. फिर एक होता है सस्पेंसर सेल और दूसरा होता है टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल सेल भी बोलते हैं इसको. तो सस्पेंसर सेल जो होता है वो साइज़ में बड़ा होता है और इसे बेसल सेल भी कहते हैं. अब मैं आपको इनकी पोजीशंस के बारे में बताती हूँ. जो सस्पेंसर सेल होता है ना, वो एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है और जो एम्ब्रियोनल सेल होता है वो चलाजल एंड की तरफ होता है. तो सस्पेंसर सेल में होती है एक ट्रांसवर्स डिवीजन और एम्ब्रियोनल सेल एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करता है और बनाता है एक टेट्राड. ठीक है, उसमें 4 सेल्स हो गए, 2 सस्पेंसर के हो गए और 2 हो गए एम्ब्रियोनल सेल के. अब जो सस्पेंसर के 2 सेल्स हैं उनमें से जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाला है वो एनलार्ज होके बना देता है एक वेसिक्यूलर बेसल सेल, और दूसरे में बहुत सी ट्रांसवर्स डिविजन्स होती हैं और एक 7 to 8 सेल्स का एक लंबा सस्पेंसर बन जाता है. आप देख पा रहे हो, दिस इज ई. यस, उधर जो प्रो एम्ब्रियो के 2 सेल्स हैं जो लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड करते हैं एंड दे फॉर्म 4 सेल्ड क्वाड्रेंट स्टेज. तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 सेल्ड स्टेज है और फिर उसके बाद है क्वाड्रेंट स्टेज जिसमें 4 सेल्स हैं. आपको 2 ही नज़र आ रहे हैं क्योंकि 2 पीछे हैं. सो ऑल द 4 सेल्स ऑफ द क्वाड्रेंट दे अंडरगो ट्रांसवर्स डिविजन्स एंड 8 सेल्स आर फॉर्म्ड. ये ऑक्टेंट स्टेज भी आपको नज़र आ रही है. दिस इज द ऑक्टेंट स्टेज और इसे कहते हैं, ये जो आपको अभी दिखाई मैंने वो ऑक्टेंट स्टेज है. तो इस ऑक्टेंट के ऊपर के जो 4 सेल्स बनाते हैं वो हिप्पोकोटाइल बनाते हैं और नीचे के जो 4 सेल्स हैं वो स्टेम टिप और कॉटिलिडन्स बनाते हैं. फिर इन 8 सेल्स में होती है पेरिक्लाइनल डिवीजन. सो एज अ रिजल्ट 16 सेल्स आर फॉर्म्ड जिसमें 8 बाहर होंगे, उन्हें कहते हैं प्रोटोडर्मल सेल्स, और अंदर के 8 को इंटरनल सेल्स बोलेंगे. राइट, तो हमारा हो गया 16 सेल्ड आ गया, 16 सेल्स तक हम पहुंच गए. तो जो 8 प्रोटोडर्मल सेल्स होते हैं वो एंटीक्लाइनली डिवाइड करके एम्ब्रियो की एपिडर्मिस बना देते हैं और अंदर वाले जो 8 सेल्स हैं वो अलग अलग प्लेन्स में डिवाइड करके कॉटिलिडन्स बनाते हैं, हिप्पोकोटाइल बनाते हैं और प्लूम्यूल का जो ग्राउंड मेरिस्टम है और प्रोकैम्बियम बना देते हैं. तो इस स्टेज पर प्रो एम्ब्रियो जो है वो ग्लोबुलर है. ठीक है, उसे ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो कहते हैं. तो ग्लोबुलर स्टेज में जब रेडिकल, प्लूम्यूल और कॉटिलिडन्स डेवलप हो जाते हैं तो प्रो एम्ब्रियो इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्ब्रियो. ठीक है, और
जब कॉटिलिडन्स और प्लूम्यूल डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हैं तो ग्लोबुलर प्रोएम्ब्रियो जो है वो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बन जाता है। इसमें आपको दिख रहा है हार्ट शेप्ड ग्लोबुलर भी नज़र आ रहा है। तो हमने देखा कि एक सिंगल सेल्ड जाइगोट से डाइकॉट एम्ब्रियो कैसे बनता है। जाइगोट डिवाइड करता है दो अनइक्वल सेल्स में, सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोनल सेल। देन embryonal cell divides into 2, 4, 8 and 16 cells. Then it acquires a globular shape and then ultimately a mature embryo which is heart shaped. I hope कि आपको समझ आ गया होगा. Now we'll see the embryogenesis in monocotyledons. So up to globular proembryo, the embryogenesis is same for dicots and monocots. So terminal cell or embryonal cell undergoes number of divisions in various planes. Nearly 1/2 of the terminal cell derivatives function as shoot apex. So remaining cells, they show rapid cell division and form a single cotyledon which is terminal. तो मोनोकॉट्स की एम्ब्रियोजेनेसिस ग्लोबुलर स्टेज तक दोनों में एक जैसा होता है, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में ऑलमोस्ट। तो उसके बाद एम्ब्रियोनल सेल या टर्मिनल सेल जिसको बोलते हैं उसमें बहुत सी डिविजन्स होती हैं अलग अलग प्लेन्स में। ऑलमोस्ट आधे सेल्स शूट एपेक्स बनाएंगे और जो बाकी के सेल्स होते हैं वो सेल डिवीजन के बाद सिंगल कॉटिलिडन बनाते हैं जो टर्मिनल होता है। नाउ वी मूव ऑन टू द डेवलपमेंट ऑफ सीड। तो the process of double fertilization in angiosperms transform ovule into a seed. तो जब डबल फर्टिलाइजेशन होती है, यहाँ आपकी याद ताज़ा करने के लिए एक ओव्यूल भी दिखाया है। आप देखो इसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो एक टेबल बनाया है बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है, वो क्या बनाता है आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। तो जो व्यूल के इंटेग्यूमेंट्स होते हैं वो सीड कोट बनाते हैं, राइट। अब इंटेग्यूमेंट्स दो हैं, जो आउटर इंटेग्यूमेंट है वो बनाता है टेस्टा और जो इनर इंटेग्यूमेंट है वो बनाता है टेगमेन। इसी तरह माइक्रोपाइल है, तो माइक्रोपाइल बनेगा सीड पोर, और ये जो सीड पोर है ये इट फैसिलिटेट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ वाटर एंड गैसेस, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोपाइल हो गया, देन फ्यूनिकल, तो फ्यूनिकल बनाता है स्टॉक ऑफ द सीड। हाइलम इट मार्क्स द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द स्टॉक। इसी तरह जो ओव्यूल है वो बनाएगा सीड और ओवरी बनाएगी फ्रूट, और वॉल ऑफ द ओवरी जो है वो पेरिकार्प बनाएगी। तो हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं सीड की। तो सीड इज अ ripened fertilized ovule and is the final product of sexual reproduction. It has in it an embryonic plant, reserve food and protective coat. आप देख रहे हैं मोनोकॉट सीड कैसे दिखता है और डाइकॉट सीड कैसे दिखता है। इसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है which has a plumule और जो कि एम्ब्रियोनिक शूट होती है, एक रेडिकल होता है जो कि एम्ब्रियोनल रूट होता है। इट हैज़, अगर तो वो डाइकॉट है तो उसमें 2 कॉटिलिडन्स हैं, और अगर मोनोकॉट है तो 1 कॉटिलिडन होता है, राइट। सो मेज़ के सीड के लॉन्गिट्यूडल सेक्शन में इसके देखिए तो इसके जो कॉटिलिडन होता है, मेज़ का जो सीड है इसका जो कॉटिलिडन है इसे स्कुटलम बोलते हैं। इसमें एंडोस्पर्म है, प्लूम्यूल है, रेडिकल है और है कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। तो ये क्या होता है, द प्लूम्यूल एंड रेडिकल दे आर प्रोटेक्टेड बाय डिस्टिंक्ट शीट्स कॉल्ड कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा रिस्पेक्टिवली। मीन्स जो प्लूम्यूल को ढकता है वो कोलियोप्टाइल है और जो रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है उसे कोलियोराइजा कहते हैं। इसी तरह से
आप अनियन का सीड देख रहे हैं इधर, तो अन्य इसमें हिपोकोटाइल है। इसमें हिपोकोटाइल क्या होता है? इट इज़ द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस विच लाइज बिलो द कॉटिलिडन, ठीक है। और एपिकोटाइल, इट इज़ द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस विच लाइज अबव द कॉटिलिडन इन अ डाइकॉट एम्ब्रियो। तो अब अगली स्लाइड देखते हैं। तो सीड्स में सीड्स बहुत टाइप्स के हैं। वेयर इज दैट? यस। तो नाउ डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, सीड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस। सो ये कौन से होते हैं? ये वो सीड्स होते हैं जिनमें the food stored in endosperm is completely used up by the developing embryo, right? ग्राम में, पी में होता है जैसे। और फिर है एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड्स। ये वो सीड्स होते हैं, these are those seeds which have not utilized all of their endosperm, ठीक है। और सीड में एंडोस्पर्म रहता है। तो जैसे अभी हमने देखा मेज़ का, तो मेज़ जो है वो एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड है, राइट। सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स हमने सीड्स को डिवाइड किया दो हिस्सों में, मोनोकॉटिलिडनस और डाइकॉटिलिडनस। अब मोनोकॉट्स में एक ही कॉटिलिडन होता है जैसे मेज़ में, और डाइकॉटिलिडनस में दो कॉटिलिडन्स होते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पी में डाइकॉट, जितने भी डाइकॉट्स हैं वो उनकी जो सीड्स हैं उनमें दो कॉटिलिडन्स होते हैं। अब सीड्स में दे हैव द एबिलिटी टू रिटेन द पावर ऑफ जर्मिनेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे घरों में हमने अपने किचन में राजमा और साबुत दालें, चने वगैरह रखे रहते हैं ना, आप उन्हें ग्रो भी कर सकते हैं बिकॉज दे हैव रिटेन्ड द पावर ऑफ जर्मिनेशन। तो सीड्स ये पावर कुछ समय के लिए ही रख पाते हैं और इसे कहते हैं वाइबिलिटी ऑफ सीड्स, ठीक है। तो अ सीड इज सेड टू बी वाइबल इफ इट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन अंडर सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। जैसे ओक्सैलिस के सीड्स कुछ दिनों तक वाइबल रहते हैं। फिर कुछ क्रॉप प्लांट्स हैं जिनके सीड्स 2 से 5 साल तक वाइबल रहते हैं, और कईयों के तो 100 साल और कई 1000 ईयर्स भी कईयों के रहते हैं। जैसे ट्राइफोलियम है, उसके तो 100 ईयर्स तक वाइबल रहते हैं सीड्स। नाउ कुछ प्लांट्स में सीड्स वाइबल होने पर भी वो जर्मिनेट नहीं कर पाते, बेशक उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलें या ना मिलें। मतलब वो फेवरेबल कंडीशंस मिलने के बाद भी वो जर्मिनेट नहीं कर पाते। द सीड्स ऑफ सच प्लांट्स आर सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी। तो dormancy is the condition of seed when it fails to germinate even though the favorable environmental conditions for active growth are present. Now we move on to the formation of fruit. So after fertilization, the ovary undergoes cell division, expansion, differentiation, and a true fruit is formed. सो ओवरी में स्टिमुलस कहाँ से आता है फ्रूट में ट्रांसफॉर्म होने का? तो ये स्टिमुलस आता है पॉलिनेशन से, और जो अंदर उसके सीड्स डेवलप कर रहे होते हैं उनमें। सो दो उसके स्टिमुलेंट्स हैं, तभी फ्रूट डेवलप करता है। एक तो पॉलिनेशन और दूसरा है जो सीड्स डेवलप कर रहे होते हैं। सो ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, और जो वॉल ऑफ द ओवरी होती है दैट गिव्स राइज टू फ्रूट वॉल, दैट इज पेरिकार्प। So fruits can be of two types, true fruits and false fruits. True fruits are also called as eucup. So when fruit is derived from ovary of a flower, it is called as true fruit. So mango, lemon, cherry, watermelon, banana, और ऐसे बहुत सारे fruits आप you can quote as many examples as you can. फिर है false fruits. तो false fruits को pseudocarp भी कहते हैं. When fruit is derived not only from the ovary but from other accessory floral parts.
जैसे एप्पल है, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी। तो फ्रूट्स को पढ़ने, फ्रूट्स को उनकी स्टडी और उनकी कल्टीवेशन को हमने एक there is a branch of science which deals with this, and this branch of science that deals with the study of fruits and their cultivation is called as pomology. तो यहाँ आपको कुछ फ्रूट्स दिखा रहे हैं. एक तो मैंगो है और ये ट्रू फ्रूट है, और कुछ साथ में फॉल्स फ्रूट्स भी दिखाए हैं. तो जितने भी एग्रीगेट और मल्टीपल फ्रूट्स होते हैं दे आर फॉल्स. तो इन्फीरियर ओवरीज से बनने वाले जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो फॉल्स होते हैं, क्योंकि वॉल ऑफ सच एन ओवरी हैज़ अ पार्ट ऑफ थैलेमस फ्यूज्ड विद इट. तो मलबेरी, पाइनएप्पल, दे आर फॉल्स फ्रूट्स. सो एप्पल, pear, strawberry, cashew, false fruits हैं, because their edible part is fleshy thalamus. ब्रिंजल भी false fruit है because उसका जो calyx है वो persistent रहता है. तो there are now certain important terms, as I told you, from the examination point of view. 1 mark, 2 mark questions आते हैं यहाँ से. तो the first one is apomixis. Apo means without. Mixis means marriage, means without marriage. It mimics sexual reproduction. Actually, it is not sexual reproduction, but it mimics sexual reproduction. So here, formation of new individuals by asexual methods which mimic sexual reproduction, including seed formation, but do not involve the fusion of gametes or sex cells. तो टैराक्सिकम में होता है, ऐसे पोआ में होता है. So it is a mimicry of sexual reproduction. It is also called as agamospermy. अब हम आते हैं एम्फीमिक्सिस. तो एम्फीमिक्सिस अभी तक जो हमने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा एंजियोस्पर्म्स में, दैट इज एम्फीमिक्सिस. द नॉर्मल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज एम्फीमिक्सिस. Here the formation of new individuals takes place through the normal process of sexual reproduction, which involves gamete formation by meiosis and then their subsequent fusion during fertilization. Then we move on to parthenogenesis. So partheno means virgin and genesis means descent. So it is the development of new individual from a female gamete without fusion with another gamete. तो यहाँ पर कोई फ्यूजन नहीं होता. राइट. फिर आते हैं पार्थिनोगैमी पे. सो इट इज़ द यूनियन ऑफ टू इनकम्पैटिबल गैमेट्स. फॉर एग्जाम्पल फ्यूजन ऑफ टू फीमेल गैमेट्स. इसी तरह से बात करते हैं एपोस्पोरी की. तो इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ गमीटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट डायरेक्टली. राइट. फिर है एपोगैमी. तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गमीटोफाइट विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. अब डिप्लोस्पोरी है. सो इन दिस केस diploid embryo sac can develop directly from diploid megaspore mother cell. इसी तरह adventive embryony है. In this case, one or few extra embryos are formed from a diploid cell of nucellus or integument, but it never forms an egg. This is citrus में और पंचा में होता है ऐसे. Sometimes, when there is occurrence of two or more embryos in one ovule, it is called as polyembryony. And it was Leeuwenhoek who in 1790 noticed it for the first time in orange seeds. जिस सीड में बहुत से एम्ब्रियोज होते हैं उनमें से यूजुअली एक ही मैच्योर करता है, और जो बाकी वाले होते हैं दे डीजेनरेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट. राइट. ये जो आप देख रहे हैं ये सिट्रस एम्ब्रियोज हैं. देखिए एक सीड में चूँकि बहुत दो तीन एम्ब्रियोज हैं, तो आप देखिए इकट्ठे प्लांटलेट्स निकल रहे हैं. सो polyembryony is of two types, true and false. When embryos arise in the same embryo sac,
ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी की बात कर रही हूँ पहले. व्हेन एम्ब्रियोज राइज इन द सेम एम्ब्रियो सैक, जैसे क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी होती है और सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स एम्ब्रियो बनाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी. अब फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी की बात करते हैं. तो व्हेन एम्ब्रियोज अराइज इन डिफरेंट एम्ब्रियो सैक्स इन द सेम ओव्यूल. तो फॉल्स एम्ब्रियोनी में क्या होता है कि ओव्यूल सेम है और अगर उस ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियो सैक्स हैं तो वो एम्ब्रियोज जो हैं वो एम्ब्रियो सैक्स में से अराइज करेंगे. दैट इज फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी. इसी तरह से पॉलीएम्ब्रियोनी को हम स्पॉन्टेनियस पॉलीएम्ब्रियोनी भी कहते हैं और एक इंड्यूस्ड पॉलीएम्ब्रियोनी भी कहते हैं. जो पॉलीएम्ब्रियोनी नेचुरली अक्कर कर रही है ना, दैट इज स्पॉन्टेनियस पॉलीएम्ब्रियोनी, जैसे सिट्रस में होता है. अब इंड्यूस्ड पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है? When induced, the embryo development takes place in a culture medium. So polyembryony can also be induced in a culture medium. The embryos developed in culture medium are called adventitious embryos. उनके बहुत से नाम हैं. Adventitious embryos भी बोलते हैं उनको, somatic embryos भी बोलते हैं, embryoids भी बोलते हैं और supernumerary embryos भी बोलते हैं. Alright. अब पॉलीएम्ब्रियोनी की प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है? तो जो न्यूसेलर एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी है, इट इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन हॉर्टिकल्चर. राइट. तो होता ये पेरेंटल टाइप के यूनिफॉर्म सीडलिंग्स देते हैं बिल्कुल. तो सिट्रस के न्यूसेलर एम्ब्रियोज हैं, दे प्रोवाइड बेटर क्लोन्स देन कटिंग्स. अगर हम कटिंग से करेंगे उससे ज़्यादा बेटर है ये जो पॉलीएम्ब्रियोनी से जो एम्ब्रियोज होते हैं. So nucellar seedlings, they show restoration of vigor and they are free from diseases. So students, that's all, and that finishes your chapter 2. Thank you very much and stay safe. May God bless you all.